Good morning. Today we are discussing accounting financial information. Chapter first. What is the financial information? As an information system, accounting collects financial data, records it in the books of account, classifies and summarizes it to produce financial information that is communicated to its user. Accounting begins with the identification of transaction of financial nature and ends with the preparation of financial statement. Financial statement में क्या इंक्लूड होता है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं. Each step in the process of accounting generates information. The generation of information is not an end in itself. It is a way of facilitate the communication of information to the user of accounting information. Types of accounting information. Accounting information कितने तरीके की हो सकती है? Accounting information refer to the financial statement generated to the process of bookkeeping, use of which help the user to arrive at decision. The financial statement so generated are the income statement जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं एंड पोजीशन स्टेटमेंट जिसे बैलेंस शीट कहते हैं. द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज स्टेटमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग. फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो. तीन तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, द इनकम स्टेटमेंट मेक अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. A firm prepares trading account, a part of the profit and loss account, which provide information about gross profit or gross loss, and profit and loss account provide information about the net profit or net loss. So information relating to profit is provided through the trading account and profit and loss account. Trading account से gross profit या gross loss पता लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता कर होता है. सेकंड, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिलती है. द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज ए बैलेंस शीट मेक अवेलेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी. एंटिटी मतलब इकोनॉमिक यूनिट. द पोजीशन statement provides information about the assets owned by the entity, amounts receivable, and the cash and bank balance held by it. These are the represented in the liability by the amount owned by the entity towards loan, creditors, and amount payable and capital. ये चीज़ें लाइबिलिटी साइड में शो की जाती हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की पता लग सकता है बैलेंस शीट से. नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब कैश आया और गया ऑफ कैश ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड. एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना कैश आया और कितना कैश गया ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है. इट इज़ ऑफ
Inmates used many decisions such as payment of liabilities, payment of dividend, and expansion of business, etc. are based on availability of the cash. ये 3 तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर एट्रीब्यूट दैट मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द यूज़र के यूजफुल होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं? दीज आर नंबर फर्स्ट, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। Reliability of information means it is a verifiable, free from bias and material error. Second qualitative characteristic, relevance. संबंधित। Accounting information must be relevant to the user. Information is relevant if it is meets the need of the user in decision making. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इस तरीके की होनी चाहिए कि यूजर उसको समझ सके। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी। Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of the other period, known as intra-firm comparison, with the accounting information of the other enterprises, known as इंटर-फर्म कंपेरिजन। उसको इंट्रा-फर्म आगे भी कंपनी का, अपनी ही कंपनी का पिछले साल से इस साल रिकॉर्ड कंपेयर करना है तो उसको इंट्रा फर्म कंपटीशन कहते हैं, और किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है तो उसे इंटर फर्म कंपटीशन कहा जाता है। दीज आर दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यूजर्स कौन कौन होते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर 2 टाइप्स, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूज़र कौन कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र ओनर मतलब मालिक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। ओनर उसे कहते हैं जो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में पैसा। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। नेचुरली they are interested to knowing the profit earned or loss incurred by the business beside the safety of their capital. The financial statement give the information about profit or loss and financial position of the business. Second, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत से डिसीजन लेने होते हैं तो इनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट टेक्स से extensive use of accounting information to arrive at informed decision such as determination of selling price, cost control and reductions, investment into new project etc. इन सबका डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से प्राप्त होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तीसरे यूजर्स होते हैं एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आर entitled to bonus at the year end, which is linked to the profit earned by the enterprises. Therefore, the employees and workers are interested in financial statement. Besides, the financial statement also reflect whether the enterprises has deposited its dues towards the employees' provident fund and employees state insurance etc. or not with the appropriate authorities. तो एम्प्लॉइज चूँकि बोनस, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो बोनस का डिमांड कर सकता है।
वो ये देख सकता है कि हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट कंपनी ने किया है कि नहीं किया है। स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो वो उसको कहाँ से पता लगेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये लोग, इसको भी ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को। ये तो 3 इंटरनल यूज़र हो गए। अब एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसका रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये सब इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस as they provide loan to the business. Naturally, they watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of its loan, advance and payment of interest. These assess it by the analyzing the accounting information. इसलिए इनको बैंक को भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरे इन्वेस्टर इन्वॉल्व रिस्क एंड आल्सो द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर्स, देयरफॉर दे रियली ऑन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम एंड सीक आंसर टू क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द इंटरप्राइजेज एंड हाउ सेफ इन देयर इन्वेस्टमेंट। ये इसी से पता लगता है। नेक्स्ट होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिनसे हम उधार माल या उधार सर्विस लेते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं। जिसने भी आपको उधार दिया है वो अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहेगा कि हमको पैसा टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ से उसको पता लगेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। तो ये एक यूज़र क्रेडिटर भी होते हैं। तो क्रेडिटर आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। It is a common business practice that a large number of suppliers remain invested in credit sales. Before granting credit, creditors satisfy themselves about the credit of the business. The financial statement help them इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर को असेसमेंट करने के लिए कि हम इनको कितना उधार दें और जो कि हमको मिल सकता है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट यूजर्स होते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट और उसको ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट to comply national income accounts and other information. The information available to it enable it to make policy decisions. जैसे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, पहले तो कई तरीके के टैक्स होते थे, अब तो केवल जीएसटी हो गया। जीएसटी और इनकम टैक्स। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Income tax. These government authorities assess correct tax dues after an analysis of the financial position statement. उसने सही पैसा जमा किया है कि नहीं किया है, उसको एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। इसी तरीके से रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज देयर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क करने के लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। Next, consumer required accounting information for establishing good accounting control so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in the price of product they buy. Sometimes price of some product are fixed by the government. So, it needs accounting information to fix
fair price so that consumer and producers are not exploited. इसलिए इनको ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट होती है पब्लिक यूजर्स हैं. दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट्स मेक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक इन मैनी वे. दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल्स, patronage to suppliers, etc. Thus, financial accounting provides useful financial information to various user group and decision making. These are the users. ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र दो तरीके के, एक इंटरनल यूज़र, दूसरे एक्सटर्नल यूज़र. आपका थ्योरी इस तरह की है, व्हाट इज़ द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो आपको लिखना है टू यूज़र, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल यूज़र आर उसको डिस्क्राइब करना है, एक्सटर्नल यूज़र आर उसको डिस्क्राइब करना है. ठीक. एक क्वेश्चन बनता है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट आर एन साइंस. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प us to achieve our desired objective. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing of financial transaction. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. Any organized knowledge based on certain basic principles is a science. Accounting is also a science as it is an organized knowledge based on certain basic principle. चूँकि ये certain basic principle पे बेस्ड है, डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ प्रिंसिपल है डेबिट क्रेडिट का, उसके बेस पे इसलिए इसको हम अकाउंट इज साइंस भी कहा जा सकता है.